Welcome, guys. Welcome to my channel. So today we're gonna be thoroughly discuss on interview part. In last couple of months, I have seen few examples. So I have met many students from a rural background. They had a question in their mind: How can we apply for a job in corporate companies like Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Tata Consultancy Services, or even Infosys or FIS or many other companies which is are located in in a metro cities. Uh, so just because why I'm making this video, let me tell you the purpose of this video. Once you know the process, once you know the cult or the creed, how to go there, how to reach there, how to get place in companies like even private banks and all, then it would easy journey for you to prepare through this entire transition process. And that is what I started to make a video on this interview part, right? And this is very integral part of this entire the hiring process, right? You have a knowledge, you completed your academics, now you have achieved something, right? But still you don't know how to go ahead with your life and ambitions, right? But I can tell you how can you go and how can you get placed or accommodated in the industry, right? There is no such a difficult way, but just, yeah, I would say maybe a few the points that I'll tell you. Maybe your communication point would be there because I have seen many examples. People are not able to speak in English, and just because of that, they are outside of this, the competition. But that is not the real thing that you guys are thinking, right? Communication can be covered, and there are a few tips that again I will discuss in details, right, in this video. And second things, awareness. You guys are not aware about the corporate, right? And that is what I'll make this video in English as well as Hindi, and little bit I'll take Marathi as well if needed, because at the end the most important or significance objective of this video is you should know, you should understand the process, you should understand the things, right? You guys are not able to understand in English, then that doesn't make sense at all to make video in in English, because I'm putting my efforts a lot. In last couple of days I could not connect with you through the YouTube platform, but again, yeah, trust me guys, I was very busy, but finally, yeah, I got time to make video, then just I'm making it now. I hope it will continue series for you, right? Even I haven't uh even table as well, or sorry, digital board as well, but now I have that. I ordered it for you only because I can wear I can note few important points that even you can jot it down for a future reference, and you can prepare accordingly. And that is what I have ordered new board as well. Now I have it me, and that is what now I can say, yeah, I am with fully equipped, and that is what I started my again first video. So let's just we should start it without taking much time, all right? Without uh yeah मैंने पर्पस तो बता दिया कि वीडियो क्यों बना रहा हूँ और इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हम प्लेस हो जाए, राइट? सेक्टर वाइज आई विल टेल यू. सेक्टर वाइज मींस there are views crowd who is reaching out to me in terms of job opening or the consultation or guidance, right? Additional facilities they want from me, that is what they are reaching out to me personally, right? But it's bit difficult for me to teach everything to each individual, because I would like to teach you guys individually, but when there is a views crowd, right, when the number get increased, then be difficult for me to connect with you individually, because after all I'm working with the reputed MNC. Even I have a time constraint, and because of that I cannot do that. Unfortunately I cannot do that. But
Fine, now we are virtually connected, well virtually connected. We have equipments and platforms. Why not connected through this platform, right? We should use digital equipment to connect with each other for a good things, for a good purpose. And now we have a good purpose, and that is what I have decided to build this video for you, to build this session for you. Hope you will bear me through this entire journey, and definitely once uh, get these things, definitely you're gonna be benefited a lot. Even you cannot imagine, even if you are a fresher, even if you are experienced, and even if you want something that technique is light, which you will help to improve your performance or quality, or even how to get promotion in corporate, or how can you bring new ideas in the business and submit it to the respective project and get rewarded. How can you do all those things, right? How can you manage your everything from management to operation to marketing, and all everything we're gonna be discussed in session, in one-on-one session, or I would say I'll already I uh, announced or proclaimed that we'll make a series, right? We'll make a series, and you gonna all the sessions thoroughly, then definitely you can see the connections, you can link your knowledge to the series and get it on, right? So let's start. So what is interview? So what is interview? First of all, rather than that, we can discuss on how can you prepare for this interview. And so there are in last couple of days, many people were asking question, were questioning me on on this part, because there are a few crowds who is not from convent or English, the medium. That is what they have a biggest trouble or barricade is communication. So they had a few question, how can to work on this situation. But trust me guys, कम्युनिकेशन इज नॉट द रियल प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को क्या करना है ये पता नहीं होता है, सही टाइम पे पता नहीं होता है. अगर चीजें सही टाइम पे पता हो, डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइस, एवरीथिंग विल गो वेरी स्मूथ, राइट? जब अगर चीजें पता नहीं होती है तो फिर इट वुड वेरी मैसी टू कोलैबोरेट. और वही प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है कहीं ना कहीं पे. जब मैं ये वीडियो बनाने का सोचा था तो मुझे भी पता नहीं था कि हाउ टू ऑपरेट दिस ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑन यूट्यूब, राइट? बट मैंने जब चीजें देखा सीखा, जब स्मार्ट मोड था तो उसमें भी जाके कुछ सीखा, तब जाके मैं ये पूरा सेटअप कर पाया. तो वैसे ही हर एक के साथ होता है. जब अगर आप सोचते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हमने जर्नी भी डिसाइड की, रास्ता भी देखा, बट चल नहीं पा रहे रास्ते पे. तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट? और सेकंड थिंग, मैं ये स्पेशली व्हिडिओ ज्यांच्यासाठी बनवतोय तो म्हणजे मराठी मीडियम आणि हिंदी मीडियमचे जे स्टुडंट आहेत, स्पेशली फ्रॉम रुरल एरियाज, राइट? They haven't any facilities, right? They haven't any connectivity, strong connectivity, I would say, right? Even they are not connected with this digital world, or I would say they are not connected with this metro life, right? I want to share few ideas or few my thoughts for them as well, right? ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, उन सबको कहीं ना कहीं पे फायदा जरूर होगा, राइट? पहली बात, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, बट ठीक है, मुझे थोड़ा सा बेयर करो. मैं इन शॉर्ट बना के कुछ ऐसे कम इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूं, राइट? इसलिए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मैं मिला, और उनका जो मुझे उनके जो थॉट्स थे, या फिर उनके जो क्वेश्चंस थे, ये थे कि वी आर फ्रॉम, मतलब वो मराठी मीडियम से है, वो हिंदी मीडियम से है. उन्होंने उनका ग्रेजुएशन बीकॉम, बीएससी, इवन बीबीए, राइट, और बीए, राइट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इवन फार्मेसी, या फिर कोई भी जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज है, उन्होंने उनके रीजनल लैंग्वेज में की है.
राइट। और उसकी वजह से वो लोग थोड़े से इंग्लिश के साथ उनका जमता नहीं है, झगड़ा है इंग्लिश के साथ, और इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। बट उनको जॉब करना है कहीं ना कहीं पे, उनको उनके पास स्किल्स है, वो एक अच्छा टीम प्लेयर और एक अच्छा दे हैव इवन इनोवेशन आइडियाज एज वेल। बहुत सारी ऐसी उनके पास भी टैलेंट है, न्यू चीजें है, बट वो उनको पता नहीं है कि वो कैसे इस इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आए, इंडस्ट्री के साथ जुड़े, कनेक्ट हो जाए और जॉब करे, या फिर जो भी उनके सपने रहेंगे, जो भी प्लेस होना है ड्रीम कंपनीज में, जो वॉट एवर इट इज, वो कैसे करे। राइट, ये प्रॉब्लम देखा है मैंने। तो मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि आपने कभी कोशिश की, ट्राई किया, या फिर आपका अप्रोच क्या है, या फिर आपको कुछ कंपनीज के बारे में पता है क्या, कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन माइनिंग बोलते हैं कि की है कभी, यू नो। तो या फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो कैसे बनाए, पता ही नहीं तो कैसे चले उस पाथ पे, राइट। तो ये दिक्कतें हमारे सामने हैं। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनको बहुत सारी चीजें नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत सारी है, मतलब बोलने के लिए, डिस्कस करने के लिए जाए तो ये बहुत ही लंबा चला जाएगा। बट कहीं ना कहीं पे इन सब पे हमको मतलब वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। अगर हमें जॉब चाहिए, अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो पहला रूल ये है कि दुनिया के साथ जुड़ना सीखिए, राइट। दुनिया की इंफॉर्मेशन लेना सीखिए, आपको क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, एवरीथिंग यू शुड नो फर्स्ट, राइट। आप अभी ऐसा बोलेंगे कि सर मैं कॉर्पोरेट में तो आना चाहता हूँ, बस जस्ट सैलरीज वगैरह अच्छी होती है, पर्क्स अच्छे होते हैं, रिवार्ड अच्छा होता है, बट ये भी होता है कि यहाँ 12-12, 15-15 घंटे काम भी तो होता है, नो वन कैन सी दैट, राइट। वुड यू बेयर दिस? देन मोस्ट वेलकम। ये भी चीजें हैं। तो हमें यही है, इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें हमारा मिशन पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए कि if you guys are very career oriented, and you're looking for a glamorous career in the corporate, right. You are very hard worker, smart worker, you are much talented, you are well skilled, right, well equipped with lot of the talent, you have a potential, then you should try. And the question is about the question is remain, you have a barrier like the communication, how can we work on it? I'll tell you that, right. And that is what we are taking this session, right. पहले तो इंडस्ट्री का नेचर भी हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां उनको लगता है कि ये है क्या, राइट, ये इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कैसी है, क्या है, ये बहुत सारे लोगों को यही लगता है, इसका नेचर कैसा है, राइट। पहले तो इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप्स है, राइट। अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। उसके बाद रिटेल सेगमेंट भी है, राइट। रिटेल के बाद बैंकिंग है, राइट। ओके, लेट मी डू दिस क्विक। ठीक है, बैंकिंग है, बैंकिंग के बाद आईटी है, ऑफ कोर्स, राइट। देन आईटी के बाद इवन आई वुड से बैंकिंग में भी टाइप्स कर सकते हैं हम, ठीक है। इंश्योरेंस है, इवन रियल स्टेट सेक्टर भी है, रियल स्टेट है, राइट। बैंकिंग में बहुत सारे, बट हम डिस्कस जो करने वाले हैं, राइट, हम इस पोर्शन को ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, राइट, बिकॉज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे, राइट। ये क्योंकि जो रहा पार्ट आईटी का, I'll make this video for especially IT people as well. If any grads, who is from IT background, or who is preparing for, IT sector,
तो मैं उनके लिए भी, राइट। बट ये जिनको पता नहीं है कि आईटी सेक्टर क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, राइट, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, जैसे कि अगर मैं कंपनीज के नाम लूं, चलो मैं कंपनी के नाम लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पर लिखता हूँ टीसीएस, देन इन्फी, इन्फोसिस, राइट, बीएनवाई, आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, राइट, देन वर्ल्ड बैंक, राइट, चलो ठीक है, टेक महिंद्रा, राइट, देन एफआईएस, राइट। मैं मिक्स एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, उसकी वजह भी है, ठीक है। तो ये आपने नाम नहीं सुने होंगे या फिर आपको ये बहुत सारे नाम नए लग रहे हैं, मे भी होगा आप इस सेक्टर में नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा कि बहुत सारे कंपनीज हैं, राइट। 10 लाख के ऊपर कंपनीज मिलेंगे आपको, बट ये जो टॉप के प्लेयर्स है, टॉप के लीडर्स है, मैं उनकी बात करूंगा आज, राइट। तो उनमें कैसे प्लेस हो सकते हो आप, उनमें जॉब कैसे मिल सकता है, राइट। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो टीसीएस आईटी कंपनी है, राइट, मे बी यू हैव दैट माइंड सेट, ये राइट, ये तो आईटी है, तो इसमें हमें कैसे जॉब मिलेगा, ये भी तो एक सवाल हो सकता है तुम्हारा, राइट। इसमें कैसे जॉब मिलेगा, राइट। या फिर इन्फी में कैसे जॉब मिलेगा, अगर आप सोच रहे होगे कि ये जो है, ठीक है, टीसीएस जो है, टीसीएस जो है सिर्फ क्या बोल सकते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर, या फिर बीसीए, राइट, या फिर आपको ये लग रहा होगा कि इंजीनियरिंग, जो आपको लग रहा है वो सही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बीएससी बीकॉम और इंजीनियरिंग के बावजूद अगर आपने बीएससी किया हो, बीएससी नॉर्मल स्पे किया हो समझो, या फिर बीए किया हो, राइट, या फिर आपने ऐसी कोई इंजीनियरिंग की है, या फिर कोई डिग्री की है, या फिर फार्मेसी है, राइट, या फिर आपने माना कि आपने कुछ बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, एमबीए किया हो, ठीक है। मैं इन सब के एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन है, राइट, तो स्टिल आप ये बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, राइट। आप पूछो कि मुझे कैसे काम कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है, राइट। ये जितने भी मैंने कंपनीज ऊपर लिखे हैं, जितनी भी मैंने कंपनीज लिखे हैं, राइट, इन सब में एक डिपार्टमेंट होता है, राइट। एक ये मैं पहले हटा देता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी स्लाइड ले लेता हूं जो वुड बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। अभी डिपार्टमेंट्स क्या क्या होंगे, अब कुछ डिपार्टमेंट, चलो माना कि एक आईटी है, राइट, फिनांस है, मार्केटिंग है, राइट, एंड ये इन सबको संभालने के लिए एचआर भी है, राइट। ये सब जितने भी है डिपार्टमेंट्स है। अब मुझे बताइए, क्या टीसीएस की अगर मैं बात करूं, चलो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टीसीएस, क्या टीसीएस में ये सब डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, राइट। आपको क्या लगता है, नहीं होंगे, होंगे ना, करेक्ट। तो उसमें आपको आईटी डिपार्टमेंट मिलेगा, फिनांस डिपार्टमेंट मिलेगा, मार्केटिंग, एचआर, सब डिपार्टमेंट्स एक टीसीएस के अंडर होंगे, राइट। तो अगर डिपार्टमेंट्स है तो सिंपल सा लॉजिक है कि जॉब भी है, राइट। तो यहां बीए, बीकॉम, राइट, बीबीए, एमबीए के लोग लगेंगे, करेक्ट, इनकी बल्क ओपनिंग रहेंगे वहां पे। मार्केटिंग में
ये पूरे लोग ही मार्केटिंग में रहेंगे या फिर इसमें कोई क्वालिफिकेशन, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, राइट? जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो कन्विंस कर सकते हैं, राइट, जो थोड़े से बड़े बड़े लोग होते हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, राइट। अगर एचआर की बात करूं, एचआर के लिए भी, इसके लिए भी ये सब लोग एलिजिबल है। और उसके बाद अगर किसी को स्विच करना, एचआर में जाना है, तो एक्सपीरियंस लेके भी यू कैन स्विच इट, इंटरनल आईजीपी के थ्रू, राइट। You can apply to the IGP, and then you can go through their screening process, and after that you can grab that opportunity if you want. ये थोड़ी सी बात की स्टेप है, राइट। तो ये लोग भी यहां काम करेंगे। रही बात अब आईटी की, राइट, ये सेक्टर थोड़ा सा स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आता है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि दे नीड ओनली द पीपल लाइक who have completed BCA, right? Even there, I would say engineering with प्रोग्रामिंग जो है, अभी जो चल रहा है, ट्रेंड जो अभी चल रहा है, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, राइट, या फिर C++, ये इनके स्पेसिफिक स्किल सेट के जो लोग हैं यहाँ आईटी डिपार्टमेंट में लगेंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यानी कि कंपनी का नेचर कोई भी हो, या फिर कंपनी का नेचर कुछ भी हो, इवन दोस्त मैं अगर एचडीएफसी की बात करूं, चलो ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो टीसीएस की बात हुई, तो ये मुझे एक एचडीएफसी का एग्जांपल लेके बताओ, या फिर आप मुझे कोई ऐसी इंडियन बैंक है या फिर कोई भी इसका एग्जांपल लेके बताओ, राइट। तो चलो मैं आज एक इंटरनेशनल बैंक का एग्जांपल लेता हूं जिसका नाम है बीएनवाई, सॉरी, बीएनवाई, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, राइट। ये है बैंक। अगर मैं आज इसकी बात करूं तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे आपको, राइट। इनका जो बिजनेस है हर सेक्टर में है, राइट, मार्केटिंग में भी है, राइट, बैंकिंग है, कोर बैंकिंग में बहुत सारे टाइप होते हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूं आपको। मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको जब प्रोसेस पता हो, डिपार्टमेंट्स पता हो, तो डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने में बहुत इजी जाता है, राइट। ये बहुत इजी जाता है। इसलिए मैं पूरी चीजें आपको ये समझाना चाहता हूं, ताकि आप समझे, चीजों को समझे, बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको पता नहीं है, राइट। या फिर आप यहां जो अकाउंटिंग एक है, वो भी है प्रोसेस, जिसमें कि पूरे इनके टैक्स या फिर इनकम एक्सपेंडिचर जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग, राइट। ये सबको पता है कि अकाउंटिंग, राइट, फिनेंस और बीए बीबीए के बच्चे, एमबीए के जो भी है, ये किया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा और यहां जाके बात करूं, यहां जाके बात करूं तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट का भी बिजनेस हो सकता है, या फिर ब्रोकिंग, राइट, ये भी है। तो ये सब चीजें जो है पूरे डिपार्टमेंट्स है, इसमें ये यहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता है, पहली बात। मे बी ऐसे किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल रहेगी, जो कि अभी एक है, जो आईबी डिपार्टमेंट एक बहुत है, कैपिटल मार्केट एक है, राइट, मनी मार्केट एक है, देन उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग एक है, राइट, इसमें भी स्ट्रक्चर्ड फिनेंस आता है, राइट। ये जो प्रोफाइल्स है या फिर ये जो स्पेसिफिक प्रोफाइल्स है, इसमें ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, राइट, और बैंक टू बैंक, उस उनको या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर समझो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, राइट, क्या है। क्लाइंट अगर चाहता है, क्लाइंट अगर बोलता है कि मुझे एमबीए वाला ही चाहिए, फ्रेशर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, राइट, उसके हिसाब से हायरिंग होती है। बट ट्रस्ट में गाइज, यहां पे
नो वन चेक योर क्वालिफिकेशन। तुम्हारी कोई भी ऐसे मतलब कोई भी कंपनी हो या कोई भी हो, क्वालिफिकेशन कोई नहीं देखता है, राइट। तो आप बोलोगे कि सर अभी चीजें क्या देखते हैं, फिर क्या देखेंगे, क्या देख के हायर करेंगे हमको? सिंपल सा सवाल। पहला, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, राइट। बहुत बहुत दिस इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, राइट। ये होना ही चाहिए। देन बेसिक नॉलेज, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस मैं इंटरव्यू के इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो हर एक को पता चलेगा, राइट। बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज क्या, अभी मतलब कौन से चीज का बेसिक नॉलेज, राइट। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर आपने समझो किसी ने बीए किया है तो इकोनॉमिक्स से किया है समझो। अभी आप ये मत सिली सवाल मत पूछना कि सर मैंने हिस्ट्री से किया, इसमें किया। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है वहां पे कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, बट एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक कॉमन है दैट यू कैन अवेल, राइट। तो वो आप उसका पढ़ाई करके आप बोल सकते हैं, राइट। तो इसमें इकोनॉमी का बेसिक, आप इकोनॉमी का बेसिक क्या होता है, आपको कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, राइट। ये आपको आना जरूरी है। आना इन द सेंस की गुड टू नो, राइट। अभी आप बोलोगे कि सर ये गुड टू नो क्या चीज है, राइट। अभी इंटरव्यू है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है कि आपने क्या झंडे गाड़े, आपने क्या किया, राइट। आपके पास कोई ऐसे इंट्रोडक्शन ही खुद का नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे सामने वाले को, राइट। सामने वाला 15-20 हजार पगार दे रहा है तो किस बेसिस पे देगा? तो आपको बोलना पड़ेगा, राइट। इट इज काइंड ऑफ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। यू आर इंट्रोड्यूसिंग यू सेल्फ to the interviewer or to the the owner of the business. You are saying that I have a knowledge, I have gained the knowledge from academics, right. I have the experience, or I was the part of this and this, then at that moment I learned a lot, right. You are saying that, it means you are selling yourself. You're demonstrating your skills to the others, right. इसलिए आपको बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज का मतलब आप डेफिनेशन बोल सकते हैं या फिर टाइप्स बोल सकते हैं किसी भी इसके, राइट। टाइप बोल सकते हैं, डेफिनेशन आप रट्टा मार सकते हैं, राइट। आप जो मतलब रट्टा इन द सेंस कि आपको अभी बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, या फिर जनरल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, राइट। ये आप ले सकते हैं, ये सब चीजें आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं, ये सब चीजें आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं, राइट। वही है। तो ये हुई बात। तो मैंने अभी ये बोला कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। मेरे एंटायर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि मेरे साथ, आई एम फ्रॉम एमबीए बैकग्राउंड, एमबीए फाइनेंस, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम फाइनेंस एंड इवन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट domain and field, I would say. But still, I have worked with many mechanical engineers in my process. I'm the part of banking vertical, but still I have worked with them, right. How they hired, why company hired to them, I don't want to fall into that topic. But the point is कि कंपनीज में कोई भी क्वालिफिकेशन रेगुलर होना चाहिए, बट कोई पूछता नहीं है, राइट। आपको अगर किसी कंपनी में जाना है, लाइक ई क्लर्क्स, लाइक इवन सिंटेल, अगर आप फ्रेशर हो तो सिंटेल, इवन एचसीएल, राइट, इवन what I would say, eClerx, TCS, those are the best platform, right. Those are the best companies where you can join and learn a lot, right. You can grab the knowledge, you can gain the experience, exposure, right. Then you will have a great platform where you can start your unprecedented journey with corporate, right. Finally you will be the part of this industry. Then definitely you will have a opportunity to अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आप ऐसे स्लोली स्लोली आप जा सकते हैं। ये कंपनीज है, ये बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, राइट। अगर आप नॉर्मली naukri.com या फिर ऐसे कोई
बहुत सारे ऑनलाइन अभी पोर्टल्स निकले हैं, लिंक्डइन है। मैं जो वैलिड ऑथेंटिकेटेड है, जो मैं सॉरी रेफर नहीं, जो मैं यूज करता हूँ वही आपको शेयर करूंगा। naukri.com है, लिंक्डइन है, राइट। ये जो प्लेटफॉर्म्स है, या फिर द बेस्ट वे इज टू अप्लाई, लाइक गो टू द कंपनी साइड, एनी कंपनी साइड, right? And go to their career section and upload your data, upload your CV, and you will receive call or mail from them, or definitely their HR department will get back to you or communicate with you shortly. Then you can discuss with them and join to that organization, right? So this is the process, or this is how you can do. So let me conclude to this entire, the initial, things we started before going to touch to the interview part. आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी, किसी भी स्ट्रीम का हो, आप इवन रूरल एरिया से हो या कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको चीजें पता नहीं है, तो राइट, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन आस्क मी, आई विल शेयर माय नंबर डायरेक्टली, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, I'll guide you, I'll consult you, I'll facilitate you how to walk on this creed, okay? So don't worry कि ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको नहीं, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। इवन यू कैन पुट योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन एज वेल इफ यू नीड एनी additional assistance from me. Definitely I would more happy to, facilitate you, right? Even I don't want to also miss any opportunity to connect with you guys, right? तो ये हुआ। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, और उसमें आप काम करने का मौका मिलेगा आपको, और आप काम करोगे तो आई विल नॉट डिस्कस द सैलरी पार्ट, और सैलरी डिपेंड करता है हर एक कंपनी के स्लैब के अकॉर्डिंग, या फिर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट जितना स्ट्रांग है उतना सैलरी डिपेंड ऑन द कैंडिडेट की वो कैसा है। तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा एनीवेज, कि अभी आप बोलोगे कि सर वो सैलरी का भी बताओ, तो आई विल नॉट डिस्कस, ओके? तो सैलरी में भी 14, 15, 20 हजार मिनिमम रहेगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे। सो यू कैन कनेक्ट विथ मी आफ्टर दिस। ये बिगिनर वालों के लिए है, तो मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अब रही बात, अगर इंडस्ट्री का हमको नेचर पता ही चला है तो या फिर नहीं चला है तो भी हम डिस्कस बाद में कर ही सकते हैं, आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि प्रिपरेशन कैसे करें, राइट? और प्रिपरेशन करने के बाद उसमें अप्लाई कैसे करें, इंटरव्यू क्रैक कैसे होता है, उसका फीडबैक कैसे आता है, रिजल्ट कैसे मिलता है हमको, और बाद में उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, राइट? तो हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो मराठी या फिर हिंदी या फिर जो लोकल डायलेक्ट में जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, जिनका थोड़ा सा इंग्लिश नहीं है, थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब दे कैन नॉट express, they cannot, even they are not able to speak right word at right time, even they are not, even they very afraid while asking question to someone else, right? तो ठीक है, उनका फेयर और कम्युनिकेशन पे हम लोग काम करेंगे। मैं खुद बताऊंगा कि मैंने कैसे काम किया। आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस, राइट? यू कैन लर्न थ्रू माय एक्सपीरियंस। आई वाज लाइक यू, मैंने भी आपकी तरह ही मतलब एक्सपीरियंस किया मेरी लाइफ को। और 2014-15 की अगर बात करूं तो मैं बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में था, तो मैं वो भी एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि इफ यू लाइक। तो चलो एनीवेज, तो प्रिपरेशन कैसे करें, और मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग ये वो, तो जिनके पास नॉलेज है दे कैन अप्लाई, जिनके पास नॉलेज है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज यू कैन अप्लाई, बट स्पेशली एक जो अभी प्रकार आया है जिसकी मैं यहां बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बी सॉरी लेट मी चेंज दी पेन फर्स्ट ऑफ ऑल, बीपीओ, राइट? ये जो है मॉडल है प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। क्या है? बिजनेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। किन के बिजनेस, राइट? ये जो टीसीएस के जैसे कंपनीज है, राइट? ये
यहां पे मानो टीसीएस है, राइट। टीसीएस बिजनेस लेती है किनका? बीएनवाई, बैंक ऑफ अमेरिका, एचडीएफसी, राइट, एचडीएफसी, राइट। इवन आई वुड से चलो सुजुकी और बीएमडब्ल्यू, राइट। एचडीएफसी का जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसका समझो डेटा प्रोसेसिंग का कुछ काम है, या फिर जैसे आपने, आपको पता ही रहेगा, एक एलआईसी निकाली या फिर आपने कोई ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली तो उसका 15 साल तक का एक ड्यूरेशन होता है, उसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज देनी होती है, जैसे कि उसका रीपेमेंट है, या फिर उसको क्लेम करना रहेगा, पॉलिसी बंद करनी रहेगी, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उन सबको प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो एचडीएफसी खुद करते नहीं बैठता है, हम सबको यही लगता है कि यार ये एचडीएफसी करती रहेगी, नहीं करती है। या फिर गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का काम मुझे बताओ, वो डिपार्टमेंट कभी नहीं करता है। तो वो डिपार्टमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है क्लाइंट को, मतलब वो फ्रंट ऑफिस के जैसा है। हर एक बिजनेस फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस में डिवाइड होता है। तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर वो सिर्फ क्लाइंट को बिजनेस तक लाते हैं, और जो भी डील करने का काम है जो मिडिल ऑफिस या फिर बैक ऑफिस में होता है, और उसी को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स बोलते हैं। और ये बहुत सारे फॉरेन के मिलियंस ऑफ कंपनीज है जिन्होंने ये टीसीएस के जैसे कंपनीज को अपना बिजनेस दे रखा है, और टीसीएस उसके बदले में उनको बहुत सारे ऐसे डॉलर में पैसे चार्ज करती है, राइट, और आपको रुपीज में देती है, और आपसे काम करवाती है, और ये परमानेंट होता है, राइट। आप बोलोगे कि सर ये क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट कुछ नहीं, ये परमानेंट होता है, जब तक आप करना चाहिए करो, जब छोड़ना चाहिए छोड़ो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो। तो ये बहुत सारे टीसीएस, इन्फोसिस के जैसे कंपनीज है, इवन दे आर इन आईटी, बट आईटी के बावजूद भी उनके आईटी के प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं, या फिर आईटी के सर्विसेज भी आउटसोर्स करते हैं, राइट, मेंटेनेंस का वगैरह काम, ये सब भी वहां पे होता है। इसलिए उनको हर एक टाइप्स के बंदों की जरूरत होती है। इसलिए आप, अभी आपको क्लियर हुआ रहेगा कि सर टीसीएस में मैं बीकॉम किया हूँ, बीए किया हूँ, तो मैं क्या काम करूंगा। आप डेफिनेटली कि इंश्योरेंस का पार्ट रहोगे आप, राइट। इंश्योरेंस या फिर मॉर्गेज की प्रोसेस कोई रहेगी तो मॉर्गेज का काम करोगे आप। मॉर्गेज का ये काम क्या होता है ये भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि प्रोसेसिंग मतलब पूरे जो आप कोई भी लोन वगैरह इनिशिएट करने के लिए, आप निकालने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, राइट। जैसे कि मानो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राइट, इनकम प्रूफ्स है, राइट, उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्स है, राइट, राइट। ये मैं निकाल देता हूं, पहले ज्यादा ही हो रहा है, राइट, राइट। ये प्रॉपर्टी डॉक्स है, राइट। ये सब डॉक्यूमेंट हमारा मतलब जब व्हेन यू ज्वाइन द डिपार्टमेंट तो आप ये सब काम करते रहोगे, राइट। उसको आप मॉनिटरिंग करोगे, आप उसको पेमेंट किया या नहीं तो कस्टमर को कॉल करके पूछोगे, मेल करके पूछोगे, या फिर कोई पेमेंट में डिस्क्रिपेंसी है तो वो ढूंढोगे, राइट, रिपोर्ट करोगे रिस्पेक्टिव मैनेजर को, टीम को। तो ये आप, ये सब आपको काम करने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको कोई किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जब बस एक्टिव माइंड होना चाहिए और थोड़ा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिगिनिंग में थोड़ा सा होना चाहिए, बाद में आप कष्ट करो, थोड़ी सी मेहनत करो और उसको और अच्छे से बनाओ, राइट। तो इसमें कॉल सेंटर का भी होता है, बट कॉल सेंटर जो इंटरेस्टेड है, अभी तो 12th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड ग्रेजुएट, सॉरी, जो भी स्टूडेंट है उनको ही हायर करते हैं बल्क में। वो कॉलेज करते करते पैसा भी कमाते, 10-15 हजार सैलरी भी मिलता है, और ये भी मैनेज होता है उनको, राइट। तो ये ऐसी चीजें वर्कआउट होती है। अभी ये बीएमडब्ल्यू का आप कैसे बोल रहे हो, तो बीएमडब्ल्यू में जो प्रोडक्शन, उनका जो कोर एक्टिविटी है कार बनाना है, तो कार के यहाँ पे इंजीनियरिंग के या फिर आईटी या लेबर जो भी वो लगेंगे, और फिनेंस अकाउंटिंग का भी डिपार्टमेंट होता है, बट इनके मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंट के जो एक्टिविटीज है, अकाउंट के एक्टिविटीज ये लोग टीसीएस को देके रखते हैं, राइट। इसलिए तो बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स बोला है ना, कि इन्होंने, बीएमडब्ल्यू ने या फिर बैंक ऑफ अमेरिका ने, इनका जो बैकएंड का जितना भी बिजनेस है मेंटेन करने का काम टीसीएस को दे रखा है, इन्फोसिस को दे रखा है, टेक महिंद्रा को दे रखा है। तो ये कंपनीज उनका बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, राइट,
ऑपरेशंस ऑपरेट करने के लिए तुमको हायर करती है। समझे बात? यही है फंडा। तो ये हर कंपनी में होता है, हर कंपनी में होता है, मतलब हर कंपनी में होता है। तो अब मैं बात करूंगा, अगर ये चीजें समझी भी नहीं है तो आप मुझे फिर से पिंग कीजिए, कोई बात नहीं, हम विल डिस्कस। बट अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो कोर फोकस रहा है, जो कि दो तीन प्रोफाइल्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं वही डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट। और उसके साथ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाए, तो ये पार्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसको कमर्शियल भी बोल सकते हैं, राइट। बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, राइट, देन अकाउंटिंग, टैक्स प्रोसेसेस। ये जो जितने भी बड़े बड़े प्रोसेसेस है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, राइट, ये जो प्रोजेक्ट्स है बहुत ही अच्छे हैं, और इनमें आप अच्छा सैलरी कमा सकते हैं, राइट। जो कि पॉइंट आता है सैलरी का, पर्क्स है, रिवार्ड्स है, ये बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। आप कैसे कमा सकते हैं, ये कैसे होगा, राइट, और आप उसमें कैसे जाएंगे, या फिर आप कैसे चूज करें कि किस कंपनी के पास कौन सा बिजनेस है, तो आप कहां जाके क्या करेंगे, आई विल टेल यू दैट। मैं ये हर चीज आपको डिस्कस करूंगा इन डिटेल्स, बट इस सेशन में नहीं। बट ये जो हमारा एंटायर फोकस रहने वाला है, तो ये इनमें आपको पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कौन सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, राइट। और तब जाके आपका एक इंटरव्यू, जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे एक बिगिनिंग के इसमें ही, ये जो है, राइट, इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है वो व्यू कंप्लीट हो जाएगा। ये था इंडस्ट्री व्यू, ये था डिपार्टमेंट वाइज, कैसे वो क्या क्या काम, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। मे बी मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट में बता दिया होगा, जस्ट बिकॉज की वीडियो और लंबा बन जाता है तो और दिक्कतें हो जाती है, इसलिए मैंने कम, मतलब थोड़ा सा कवर किया है। अगर आपको क्वेश्चन या फिर डाउट्स रहे तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। तो ये ऐसे चलता है। तो अभी उसके लिए या फिर वहां तक जाने के लिए आपको जो रास्ता, मतलब या फिर जो दीवार आपके बीच है और इंडस्ट्री के बीच है, ये है, ये दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, राइट। ये जो दीवार है, उस दीवार को लांघने का काम जो है हम सबको करना है। अभी ये बहुत ही, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारा जो है टास्क जो चालू हो जाता है, यहीं से चालू हो जाता है, राइट। इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं है, जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है इस वीडियो में, वो हर चीज इंफॉर्मेशन आपको आप गूगल या फिर यूट्यूब या फिर कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं। आई नो कि बुक्स और मटेरियल ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट बुक्स वगैरह अवेलेबल है। या फिर बुक्स में भी बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा प्रिसाइज होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन अगर प्रिसाइज है या फिर कंसाइज है, रिलेवेंट है, रिलायबल है, तो हमें भी इजी जाता है सब चीजें मैनेज करने में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उसमें। रही बात सेकंड की प्रिपरेशन अब कैसे करें, मैं अभी, यू मे हैव अ मेनी क्वेश्चन लाइक आई एम फ्रॉम बीकॉम, आई एम फ्रॉम बीए, आई एम फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रीम, बट स्टिल हाउ कैन वी मैनेज टू इट, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू, राइट। सिंपल है, आई टेल यू कि अभी मैं पूरा, मतलब हर एक के इसके वाइज तो इस वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आपकी वैसे डिमांड आ जाती है कि मुझे स्ट्रीम वाइज या फिर हम जिस फैकल्टी के हैं उसके वाइज मुझे गाइडेंस चाहिए, या फिर ये पूरा चाहिए, देन यू कैन पर्सनली रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू, राइट।
बट अगर इसी एक वीडियो में ये पूरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर सोच के वीडियो बनाना है तो इट्स बिट डिफिकल्ट. नो वन कैन मतलब टेल यू इन वन सेशन, राइट. वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो इवन यू कैन ऑल्सो कैन नॉट वॉच दिस टिल एंड. दैट वुड बी द प्रॉब्लम. सो दैट इज व्हाट आई डोंट वांट to this video to be very long. And that is what कि जो भी चीजें रहेगी मैं जेनेरिक वे से बता रहा हूं, तो ये वे आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट. तो पहली बात, इंटरव्यू के लिए हम स्टार्ट करेंगे. इंटरव्यू है क्या ये मैं आज बताऊंगा, और एक ओवरव्यू देके खत्म कर दूंगा सेशन. और वेरी नेक्स्ट डे आई विल मेक अ वीडियो ऑन द बेसिक क्वेश्चंस. एक इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, एंड आप उसको टैकल कैसे करना है. जो मैं चीजें बता रहा हूं ये याद रखना हमेशा. जो मैंने जो मैंने जिस तरह से आंसर्स डिजाइन किए हैं आपके लिए, जिस क्वेश्चन को अब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके लिए जो बोलना है, अगर आप वैसा ही फॉलो करते हो, आई बेट कि आप आने वाले 1-2 महीने में इस इंडस्ट्री में प्लेस हो जाओगे, आप बड़े बड़े कंपनीज में प्लेस हो जाओगे, राइट. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एट ऑल, बट इट्स नॉट इजी एज वेल. इसके लिए there is the will power is required from your side. Definitely I'll help you to reprogram your mind, even to redesign your thoughts, right. Even I would like to scrub your knowledge, that what you carry or what you have. Even I would like to bring your knowledge out of your mind, right. But for that matter, I need your cooperation, I need your support, I need your will. मैं अगर फ्री में ये सब दे रहा हूं आपको, तो यू शुड कोऑपरेट विद मी. तो वही चीज है. तो इंटरव्यू का मतलब यही है कि आपको जनरल पूरी चीजें आनी चाहिए. चीजें कैसे आनी चाहिए, कैसे आप प्रिपरेशन करें, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. बट एक वोरल की एक मैंने जस्ट आई मेड अ one file. Just let me tell you that. एक फाइल है, ये देखो. अगर आप बीकॉम के हो, अगर आप बीए बीबीए बीएससी जो भी जिस फील्ड के हो, तो आप इसमें, राइट, आप इसमें ये देख रहे पार्ट, ये है अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, राइट. यहां पे कुछ मटेरियल है, ब्रोकर अकाउंट, कस्टडी अकाउंट, बहुत सारे ऐसे है, बैलेंस शीट. ये जेनेरिक जो मैंने क्वेश्चंस है छोटे मोटे मैंने निकाले अकाउंट से, राइट. अब आप पूछो कि सर ये क्यों निकाला है. इन्हें भी आप मराठी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, तो आपको ये पता नहीं होगा. तो ये गाइस ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं. IMP फॉर इंटरव्यू, राइट. ये बहुत इजी है, आपको रटना है या फिर पढ़ना है, जो भी जैसे आप चाहो, बट ये इंग्लिश में ही आपको आने चाहिए. आप जितना मैंने दिखाया उतना नहीं, पूरी चीजें नहीं. कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, उसको और छोटा करके बताऊंगा, उसको और इजी तरह से बताऊंगा, ताकि आप इजीली आपके साथ कैरी करें और इंटरव्यू क्रैक करें. मुझे काफी सारे इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है. Almost 40 times I have rejected for many companies, and after that I got selected for many big companies as well. So I'm the example for you. You can look to me, guys. You can, if you are interested, I'll tell you my story in one session, right. If you want कि मैंने कैसे काम किया इसके ऊपर, I was like hell. I cannot, I was not able to speak a single word in front of anyone, even my colleague or mates or my friends. Even now I can speak a lot, and lot. I can speak a long in English. No one can, even you cannot imagine how did I manage, or how did I practice, how took this as a challenge and worked on it. It was bit difficult journey, but still if you are interested I'll tell you that. But
वो जर्नी में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर कोई मैनेजर है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करेगा कि व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट, ये क्वेश्चन है, तो आप आंसर कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चंस विथ आंसर्स यहाँ पे मटेरियल है मेरे पास, राइट, हर चीज का मटेरियल है, बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं आपको पर्सनली, अगर आप, मैंने इसकी खुद फीस भी रखी है, बट अगर जो कोई जेन्युइन है, ज्यादा फीस नहीं है, मैं फीस क्यों रख रहा हूं, ताकि आपके फीस से मैं किसी और को हेल्प करूंगा। इफ यू आर एबल टू, मतलब अगर आप पे कर सकते हैं तो बहुत नॉमिनल फीस रहेगी, तो आप पे कीजिए, मैं इसके प्रिंट आउट दूंगा फॉर फर्दर प्रिपरेशन, राइट। अगर आप नहीं पे कर सकते, स्टिल फाइन, स्टिल आई विल पे यू, बट अगर आप देते हैं तो मैं उसी पैसों से किसी और जिनको जरूरत है उनको हेल्प करूंगा। तो हम एक चेन बढ़ा सकते हैं एक दूसरे को हेल्प करने की। और अभी लास्ट, एट द एंड सेशन, एट द एंड ऑफ दिस सेशन, दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, बहुत जरूरी है। अगर आप यू आर फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, मलयालम, तेलुगु, योर लोकल डायलेक्ट, एंड आपका इंग्लिश का बेस थोड़ा सा पक्का नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश, आप रट सकते हैं, तो आप ये जो वर्ड्स है, आप अकाउंटिंग की बुक निकालिए, आप फिनांस की बुक निकालिए आपकी ग्रेजुएशन की, राइट, उसमें एक डिक्शनरी भी होती है, डिक्शनरी निकालिए, उसमें से जो वर्ड्स है रिलेटेड टू फिनांस, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू अकाउंटिंग, उसको रट लीजिए। अगर आप समझ सकते हैं उसका मीनिंग और दिमाग में रख सकते हो उतना कैलिबर है तो वो कीजिए, नहीं तो पूरे रट लीजिए। आने वाले 15-20 दिनों के लिए वो पूरे के पूरे रट लीजिए, और देन वी कैन सी कि आपको कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको मेरे साथ आगे लेकर के जाऊंगा। अगर आप जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो करते हैं तो आई एम डैम श्योर, मैं 100% की नहीं बट 99% की गारंटी ये देता हूं कि आप जिस कंपनी में चाहेंगे उस कंपनी के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये रहेगा, बट मेक श्योर कि असाइनमेंट यही रहेगा कि आप इंग्लिश के वर्ड्स पूरे रट लीजिए। ये उनके लिए है जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, राइट। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जिनका इंग्लिश अच्छा है, उनके लिए मैं नेक्स्ट सेशन से इंटरव्यू, जो मैंने लिखा था इसका नाम, बट इंटरव्यू तो ये जो डिस्कस हम चीजें पूरी कर रहे हैं वो सब इंटरव्यू में आता है। तो ये पूरी बैकग्राउंड, मतलब जितनी भी स्टोरी है, जितना भी पूरा हमारा सीरीज रहेगा, एंटायर सीरीज, वो इंटरव्यू के लिए है। तभी जाके आप एक 20 और 30 मिनट का इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, इसके लिए। और फ्रेंड्स की ये चीजें यूट्यूब पे भी, कहीं पे भी आप देखो कि जितनी चीजें मैं डिटेल्स में बताता हूं वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, दैट आर नॉट एग्जिस्ट ऑन एनी ब्राउजर टिल टाइम। ये सिर्फ चीजें मेरे पास ही है और मैं ही दे सकता हूँ आपको। और जो भी बाहर के लोग रहेंगे फिर दे कैन चार्ज एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, बट स्टिल आपकी जॉब की गारंटी देंगे, ये देंगे वो देंगे, पर नहीं लगेगा, ठीक है। बट देर आर few institutions who are trustworthy, so you can go through it. But still, if you want the name of those institutions, you can reach out to me. I'll suggest you. Right? मैं उसके लिए कमीशन वगैरह नहीं लेता हूँ, बट एज अ एक सोशल activity, or I would say it's a social work from my side, so I'll put my efforts to consult you something better, right? तो हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करने वाली चीजें भी मैंने कुछ कवर कर दी है, तो हम ये चीजें प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। सो मेक श्योर गाइज यू आर कंटिन्यूइंग दिस, ठीक है। तो हम अभी स्टॉप करते हैं, मैं यहीं पे अभी समय लेता हूँ। चलो बाय गाइज, थैंक यू एंड बेस्ट लक।